عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس انسان نے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین تسلیم نہیں کیا، ایسا انسان مسلمان نہیں کہلوا سکتا، ایمان والا نہیں کہلوا سکتا۔ حضرات ذیوقار قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے اہل ایمان کا یہ عقیدہ بیان کر دیا ہے۔ مجھ سے قبل شہزادہ اہل حدیث حافظ قیم الہی ظہیر صاحب آپ سے مخاطب تھے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں انہی کی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں، اور ہماری کانفرنس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن مجید کی آیات سے واضح ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی۔ رب کائنات نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان کیا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید قرآن کے اندر ایک ہی آیت ہے جو ختم نبوت کو واضح کرتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی کئی آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا گیا اور آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا۔ آئیے قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے۔ رب کائنات نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر بھی کیا ہے۔ بڑی معروف آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ایک ایسا جلسہ بھی کیا تھا جس میں آپ کو بھی بلایا تھا، مجھے بھی بلایا تھا۔ اس جلسے کے اندر اللہ نے آپ سے بھی اپنی الوہیت اور ربوبیت کا وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا کون ہے، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا کون ہے۔ سب نے کہا تھا اللہ کیوں تو ہی ہمارا الہ واحد ہے، ہم تجھ کو اپنا معبود پر حق سمجھتے ہیں۔ ایک اور بھی اللہ نے اجلاس منعقد کیا، اس میں نہ تجھے بلایا نہ مجھے بلایا، اس کے منتظمین اللہ خالق کائنات نے اس جلسہ کے شرکا جو لوگ تھے جنہیں بلایا تھا وہ لوگ تھے جن کے سر کے پر رب کائنات نے نبوت کا تاج سجانا تھا۔ رب کائنات نے انبیاء کو بلایا، اپنے رسولوں کو بلایا، تمام پیغمبروں کو بلا کر رب کائنات نے ان سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے اس عہد اور اجلاس کا تذکرہ اس قرآن کی آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ کائنات میں بسنے والوں سن لو، جب اللہ نے اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے، اپنے پیغمبروں سے ایک میثاق لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا میں تمہیں نبوتیں عطا کر دوں، پیغمبریاں عطا کر دوں، رسالتیں تمہیں عطا کر دی جائیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول برحق آ جائے، میرا وہ نبی آ جائے جس نبی نے سب سے آخر پہ آنا ہے، وہ رسول آ جائے جس نے سب سے آخر پہ آنا ہے۔ یہاں پہ رسول ان کی لام پر جو تنوینیں آئی ہیں یہ تعریف کے لیے ہیں، تنکیر کے لیے نہیں ہے، معرفہ بنا رہی ہے کہ کائنات کے اندر جو رسول سب سے آخر پہ آنے والا ہے، خاص الخاص جو رسول آنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں یہاں پہ لفظ ثم آیا ہے جو تراخی کے لیے آتا ہے۔ جتنے بھی نبی آنے تھے اس پوائنٹ کو غور سے سنیے گا، جتنے بھی نبی آنے تھے، جتنے بھی رسول آنے تھے، جتنے بھی پیغمبر آنے تھے، اللہ نے اس کے بعد کیا ثم جاءکم، جس نے نبی بن کے آنا تھا، جس نے رسول بن کر آنا ہے، ثم جاءکم رسول، اس کے بعد وہ میرا خاص رسول آئے گا جو نبیوں کا نبی ہوگا، جو پیغمبروں کا پیغمبر ہوگا، جو رسولوں کا رسول ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، جسے ہم نبی بھی بنائیں گے اور خاتم النبیین بھی بنائیں گے۔
सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर वो रसूल जब आ जाए फिर तुमने क्या करना है, तुम मुझे बताओ, उस पर ईमान लेकर आओगे कि नहीं। सारे नबियों ने ये अल्लाह से अहद किया, अल्लाह हम तुझसे ये अहद करते हैं, वादा करते हैं, अगर हमारी जिंदगियों में वो तेरा नबी आ जाए, रसूल आ जाए, हालांकि आना नहीं था, अल्लाह ने तुझे समझाया है, मुझे समझाया है कि जब वो रसूल आ जाए, नबी ये अहद कर रहे हैं, नबी ये इकरार अल्लाह के सामने कर रहे हैं, हम अपनी नबूवतें नहीं चलाएंगे, हम अपने पैगाम दुनिया के सामने नहीं रखेंगे। दुनिया वाले हमारी नबूवत के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हो, हमारी इत्तदा कर रहे हो, हमारी पैरवी कर रहे हो, हमारे पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, जब तेरा रसूल आएगा हम अपनी नबूवत का पैगाम नहीं चलाएंगे, हम अपनी नबूवत का डंका नहीं बजाएंगे, हम नबी रहमत कायनात के इमाम के ऊपर ईमान लेकर आए। ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, काला सारे के सारे नबियों ने अल्लाह से ये इकरार किया। जब अल्लाह ने कहा तुम ईमान लाओगे, ऐद करते हो, वादा करते हो, सब ने क्या कहा, कालू अकरारना, अल्लाह हम ये इकरार करते हैं, ये वादा करते हैं, अगर हमारी जिंदगियों में तेरा आखिरी नबी अगर आ गया, हम अपनी नबूवतें नहीं चलाएंगे, उसकी नबूवत पर ईमान ले आएंगे। ये नबी की खत्मे नबूवत की दलील है। आइए कुरान का एक और मुकाम समाअत फरमाइए, मेरे आका की खत्मे नबूवत की दलील समाअत फरमाइए। रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर फरमाया, अहले ईमान जो है, जो मुत्तकी लोग हैं, उनकी सिफतें अल्लाह ने बयान की हैं। ये कुरान जिनको हिदायत अता करता है, उनकी सिफतें अल्लाह ने बयान की हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका बिल आखिरति हुम युकिनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। रब्बे कायनात ने अहले तकवा की, मुत्तकीन की सिफतें बयान की हैं, जो रब के कुरान को मानने वाले हैं, जिनके को कुरान हिदायत अता करते हैं, जिन्हें कुरान सीधे रास्ते पे चलाते हैं, उन लोगों का तज़किरा करते हुए रब्बे कायनात ने फरमाया उनकी एक वसफ ये है, वो ईमान बिल गैब रखने वाले हैं, वो नमाज कायम करने वाले हैं, अल्लाह के अता किए हुए रिज़्क से खर्च करने वाले हैं। ऐ प्यारे नबी, जो हमने आपकी तरफ नाज़िल किया है, उस कुरान पर, हदीस पर ईमान रखने वाले हैं। और आपसे पहले जो नाज़िल किया गया, तौरात को नाज़िल किया गया, ज़बूर को नाज़िल किया गया, इंजील को नाज़िल किया गया, दीगर सहीफे नाज़िल किए गए, जो तख्तियां हमने अता की हैं, उन तमाम शरीयतों के ऊपर, उन तमाम बातों के ऊपर वो ईमान रखने वाले हैं। व बिल आखिरति हुम युकिनून, आखिरत पर फरमाया आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। अगर नबी रहमत के बाद कोई नबी आना होता, अगर हिदायत का मियार उनके लिए भी अल्लाह ने बनाना होता, तो अल्लाह ये भी कहते सायुनज़्ज़लु मिन बादिका, ऐ प्यारे नबी, जो हम आपके बाद नाज़िल करेंगे उस पर भी उनका ईमान होगा। आइए जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को खत्म करूं, क्योंकि 20 मिनट के अंदर मैंने अपनी बात को समेटना है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत की दलील समाअत फरमाइए। रब का कुरान कह रहा है, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, ऐ कायनात के अंदर बसने वालों सुन लो, हमने आपको, नबी रहमत को, कायनात के इमाम को, सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। कुरान की एक और दलील समाअत फरमाइए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे नबी, इन कायनात के अंदर बसने वालों को बता दीजिए, फरमा दीजिए, आगाह कर दीजिए, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ प्यारे नबी, हमने आपको शाहिद बनाया है, मुबश्शिर बनाया है, नज़ीर बनाया है, दाई इलल्लाह बनाया है, हमने आपको सिराजम मुनीरा बनाया है। जब आसमान पे सूरज चमकता है ना, इसको सिराजम वहाजा कहते हैं। जब सिराजम वहाजा चमकता है, फिर इन रोशनियों की जरूरत नहीं बचती। जब नबूवत के आसमान के ऊपर सिराजम मुनीरा चमकता है, तो फिर किसी और नबी की भी जरूरत नहीं बचती। नबी रहमत कायनात के इमाम की खत्मे नबूवत की दलाइल से कुरान भरा पड़ा है। आइए एक दो हदीसे मुबारका। कायनात के इमाम ने फरमाया, कायनात में बसने वालों सुन लो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यहाँ पे ला नबिय्य बादी, ला यहाँ पे नफीउल जिनस है। अहले इल्म मौजूद है, उन्हें पता है ला नफीउल जिनस, जिनस की नफी करते हैं, जिससे पता चलता है नबूवत
नबुव्वत जिनस की नफी यहाँ पे हो रही है। जिस तरह कुरान में अल्लाह ने कहा ला रईब फीही, कुरान के अंदर जिस तरह शक नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, जिस तरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इन तमाम जगहों पे ला नफीउल जिनस आया है, जिसने जिनस की नफी की है। बिल्कुल इसी तरह ला नबी आबादी में ला लाकर रब्बे कायनात ने बता दिया है नबी रहमत के बाद कोई नबी आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। अल्लाह ने आपको नबियों का नबी बनाकर भेजा है, रसूलों का रसूल बनाकर भेजा है, पैगंबरों का पैगंबर बनाकर भेजा है। आप सारी कायनात के बाद सबसे आला और अरफा बनकर इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए हैं। आपके खत्म नबुव्वत की बेशुमार दलाइल में से एक दलील ये भी है, कायनात के इमाम ने फरमाया एक बिल्डिंग की मिसाल देकर, इमारत की मिसाल देकर लोगों को समझाया उसकी आखिरी ईंट मैं हूँ। कसरे नबुव्वत की आखिरी ईंट आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कायनात के इमाम के आ जाने के बाद अब किसी नबी की जरूरत है? बोल के बताएं, किसी नबी की जरूरत है? कोई नया नबी आ सकता, कोई पैगंबर आ सकता नहीं। ये अहले ईमान का कीमत है। कायनात के इमाम के आ जाने के बाद अब किसी नए नबी की नबुव्वत और रिसालत की जरूरत बाकी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के कुरान ने कह दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अब जो भी आएगा उसके लिए भी तो फैसला होना चाहिए ना। अल्लाह के कुरान ने फैसला, अल्लाह के प्यारे नबी ने फैसला कर दिया अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पाक तैर तैयब पकीदा ज़बान से कायनात वालों को बता दिया सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबून, कायनात के अंदर बसने वालों सुन लो, नबी रहमत कायनात के इमाम फरमा रहे हैं मेरे बाद बड़े बड़े दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, 30 के करीब होंगे, वो नबुव्वत का दावा करेंगे, वो सारे के सारे कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे, उनमें से कोई भी अल्लाह का नबी नहीं होगा, वो कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा। ना कोई दिल्ली नबी आ सकता, ना कोई बरूजी नबी आ सकता, ना कोई मुतहद नबी आ सकता, क्योंकि रब्बे कायनात ने नबुव्वत को खत्म कर दी है। आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायनात के इमाम की नबुव्वत और रिसालत के बाद अब कोई और नबी आ सकता? आखिरी नबी बनाकर अल्लाह ने आपको मबूस किया है। अगर कोई कहे कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, पैगंबर हूँ, इस तरह दावा करने वाले करते हैं। मेरे मोहतरम हाफिज तैयब इलाही ज़हीर तज़किरा कर रहे थे आपके सामने कि बड़े बड़े कज़्ज़ाब आए हैं, दज्जाल आए हैं, हम उन्हें अपने पाँव के जूते की नोक के ऊपर भी रखने के लिए तैयार नहीं है। उनकी हैसियत क्या है? तो नबी कायनात के बाद नबुव्वत का दावा करे वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, नबी और रसूल हो सकता नहीं है। कहते हैं जी मसीले मसीह है। क्या है जी? मसीले मसीह है। हम इसको मसीले मसीह मानते हैं। आज ये नया फितना उठ रहा है, लोगों को गुमराह करने की साजिशें की जा रही हैं। कादियानी ये बात फैलाने की कोशिश करते हैं कि जो मिर्जा आया था ना कादियानी, वो मसीले मसीह था, ईसा की मिसल था। वो जो क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुनिया में आना है ना, वो मसीह जो है ना, वो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बनकर आया है। अल्लाह अल्लाह ताऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नबी रहमत ने उस ईसा की निशानियां भी बयान कर दी थी, पैगंबर ने उस ईसा की निशानियां भी बयान कर दी थी कि क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नाज़िल होंगे, उनके दाईं जानब एक फरिश्ता होगा, बाईं जानब एक फरिश्ता होगा, आसमानों से ईसा अलैहिस्सलाम उतर रहे होंगे। जिस तरह हाजी एहराम की चादरें पहनता है, इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने चादरें पहनी होगी, उनके सर से पानी के कतरात टपक रहे होंगे। ऐसे लगेगा जैसे गुस्ल करके अभी अभी आए हैं, जैसे सर को नीचे झुकाएंगे तो पानी के कतरात टपकेंगे। दमिश्क के मिनारा बैज़ा के ऊपर हजरत ईसा बिन मरियम वहां पे नज़ूल फरमाएंगे, वहां पे उतरेंगे, सीढ़ी के जरिए वहां से नीचे लाया जाएगा। अल्लाह ने निशानियां बयान की हैं। लोगों ने कहा मिर्जा साहब आप कहते हो कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मसीह की तो ये निशानियां जामे तिर्मिज़ी के अंदर दीगर हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। वो तो ईसा इस तरह आएंगे। कहते हैं तुम्हें नहीं पता ये कादियान जो है ना, ये सीधा दमिश्क से सीधा है, सीध के ऊपर है, इसलिए इससे मुराद उसकी सीध है। लोगों ने कहा अच्छा जी, हालांकि ये भी कितने पागलपने की बात है। दुनिया के जिस भी इलाके में आप चले जाए, आपको उस इलाके में वो इलाका दूसरा, आप कराची समझते हैं तो हम लाहौर में बैठे हुए कह सकते हैं कि सीधा यहाँ से कराची सीध है तो सीध बन जाती है। सीध बनाने में कौन सी मुश्किल
मुश्किल है, ये अकल से कई गुजरी बात थी। लोगों ने कहा चलो ठीक है ये तो मान लेते हैं, सीध इससे मुराद है, लेकिन जो ईसा बिन मरियम आएंगे उन्होंने जर्द रंग की चादरें पहनी होंगी, आपने तो कोई जर्द रंग की चादरें नहीं पहनी हुई थी। जब आप आए थे तो मदरजात थे, आपकी कफियत और हालत ऐसी थी, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, आपने तो चादरें। कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, इससे मुराद ये है अगर कोई पीला येलो कलर ख्वाब के अंदर देखता है ना, इससे मुराद बीमारी होती है। तो जो मसीह बिन मरियम नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आएंगे उन्हें दो बीमारियां होगी, एक नाफ से ऊपर की, एक नाफ के नीचे की। कहते हैं वो दो बीमारियां मुझे हैं, नाफ से ऊपर की बीमारी निस्यान की है, मैं भूल जाता हूँ, और नीचे की बीमारी कसरत बौल की है, कसरत से बहुत ज्यादा मुझे पेशाब आता है। मिर्जे के अपने बेटे ने सीरतुल महदी के अंदर लिखा है, अब्बा जी हुजूर दिन में 100 मरतबा पेशाब किया करते थे। कसरत बौल का ये अंदाज था, गुड़ खाने का बड़ा शौक था, और ये गुड़ खा अपनी जेब के अंदर, वेस्ट कोट की जेब के अंदर गुड़ रखा करते थे, और भूलने की भी क्योंकि बीमारी थी, इसलिए माँ ने इनको जो है ना जूते जो पहनाए होते थे, उन जूतों के साथ उन्होंने धागा बांधा होता था। ये काले रंग का धागा दाईं जानब वाले पाँव के अंदर ये जूता पहनना है, और ये सुर्ख रंग का धागा जो है इस जूते के साथ बंधा हुआ है, इसको बाएं के अंदर पहनने हैं। हजरत इतने भुलक्कड़ थे फिर भी भूल जाते थे, और क्योंकि भूलने की बीमारी थी, वेस्ट कोट की एक जेब के अंदर पेशाब 100 दफा आता था, इसलिए उन्होंने ढेले रखे होते थे जो अस्तंजा करने के लिए गुड़ के साथ अस्तंजा कर लेते थे, मिट्टी के ढेलों के साथ नाश्ता कर लेते। अस्तगफिरुल्लाह, इसको कहते हैं नबी, इसको पैगंबर कहते हैं। हम कहते हैं जिसको तुम नबी कह रहे हो, जिसको तुम पैगंबर कहते हो, तुम तो मुझे एक अक्ल सलीम वाला इंसान साबित नहीं कर सकते। नबी और रसूल तो बड़े दूर की बात है, पैगंबर तो बड़े दूर की बात है। ऐसा अहमक इंसान नबी हो सकता, ऐसा दज्जाल हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, अल्लाह का नबी हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों सुन लीजिए, बात तो बड़ी लंबी की जा सकती थी, इख्तिसार के मलूज़ खातर रखते हुए मैं अपनी बात को समेटकर आखिरी बात आपके पेश करना चाहता हूँ। अब हमारे लिए क्या हुक्म है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए पैगाम क्या है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का पैगाम सुन लीजिए, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान का पैगाम सुन लीजिए। हम गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, नगर नगर, बस्ती बस्ती, शहरों के शहर, सूबों के सूबे, मुल्क के कोने कोने में जाकर ये कह रहे हैं, आइए अहले हदीस का पैगाम सुनिए, कायदे अहले हदीस का पैगाम सुनिए। अकीदा खत्म नबूवत के लिए अगर हमें जाने कुर्बान करनी पड़ी तो हम करने के लिए तैयार है अल्लाह के फजलो करम से। जिस तरह हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अपनी जिस्म का एक एक अज़ब कटवा लिया था, कुर्बानी पेश की थी, जिस्म कटता जा रहा था, साथ कहते जा रहे थे, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिस्म के आज़ाद काट रहा था। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे, कराची वालों को पैगाम दे रहे थे, अगर बारी आ जाए अकीदा खत्म नबूवत के लिए, मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत बनने के लिए, खत्म नबूवत की चौखट की चौकी तारी करने की बारी आ जाए, अगर हबीब बिन ज़ैद अंसारी की तरह तुम्हें जाने कुर्बान करनी पड़ी तो जाने कुर्बान कर देना। ये है मकसद, ये है पैगाम अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जिस तरह हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह के फजलो करम से हम भी तैयार बैठे हैं। अल्लाह के फजलो करम से नबी की नमूस के ऊपर मर मिटने के लिए, कायनात के इमाम की खत्म नबूवत के ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए अहले हदीस यूथ फोर्स के शहीनों शहबाज अपने कायद हाफिज फैसल अफजल शेख की क़यादत में, हाफिज आमिर सिद्दीकी की क़यादत में अल्लाह के फजलो करम से हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए, बोल के बताएं, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब जिसका दिल चाहे वो पाए रोशनी, हमने तो सीना जला के सरे आम रख दिया है।